ادعو إلى سبيل ربك بالحکمہ والموعظة الحسنہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اے محبوب بلائے لوگوں کو اپنے رب کی طرف حکمت سے اور اچھی گفتگو سے۔ بولیے بولیے کیا فرماتا اللہ کریم؟ ادعو الی سبیل ربک، اے محبوب بلائے لوگوں کو اپنے رب کی طرف۔ سبحان اللہ۔ قرآن کا انداز بیان دیکھو مسلمانوں، if Allah will، اگر اللہ چاہتا تو یہ بھی فرما سکتا تھا اے محبوب بلائے لوگوں کو ان کے رب کے راستے، واہ واہ، کائنات کے رب کے راستے کی طرف۔ تب بھی تو بات وہی ہوتی نا، جو کائنات کا رب ہے وہی تو مصطفیٰ کا رب ہے، جو کائنات کا رب ہے وہی تو مرتضیٰ کا رب ہے۔ لیکن قرآن نے یوں انداز اختیار نہیں کیا، قرآن جب حکم فرماتا ہے تو یوں انداز اختیار کرتا ہے ادعو الی سبیل ربک، بلائے لوگوں کو اپنے رب کی راستے کی طرف۔ تو اعلیٰ حضرت یہاں پر پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اے دنیا والو شان محبوبیت دیکھو، شان محبوبیت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ربوبیت کی اضافت و نسبت اپنے محبوب کے جانب کی، اپنے محبوب کی جانب کی ہے اور دنیا کو مزاج دیا ہے۔ اے دنیا والو، اے دنیا کو مزاج دیا ہے اے محبوب لوگ مجھے جانیں، لوگ مجھے پہچانیں، لوگ مجھے مانیں، مگر ایسے نہیں کہ ڈائریکٹ میری بارگاہ میں آ جائیں۔ وہ مجھے جانے مگر ایسے کہ پہلے تجھے جانے، وہ مجھے مانے مگر ایسے کہ پہلے تجھے مانے، وہ مجھے پہچانے مگر ایسے کہ پہلے تجھے پہچانے۔ اے محبوب میری بیعت تیری بیعت سے، میری اطاعت تیری اطاعت سے، میری پیروی تیری پیروی سے، میری خوشنودی تیری خوشنودی سے، میری غلامی تیری غلامی سے، میری رضا تیری رضا سے۔ تو راضی ہو جا میں راضی ہو جاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے خدا کی رضا۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ آپ چھوڑے لیے، آپ چھوڑے لیے 50 روپے چھوڑے لیے۔ اللہ کے بولیے، اللہ کے بولو، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے۔ المسند اخرجہ احمد بن حنبل فی المسند۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں میں ایک روز وادی بطحہ میں آرام کر رہا، سبحان اللہ، ان العین نائمہ والقلب یحزان، میری آنکھیں سو رہی تھی میرا دل جاگ رہا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاء ایسے اللہ۔ میں دو فرشتے آئے، پھر ایک ترازو قائم کیا گیا، ایک پلے پہ مجھے رکھا گیا، دوسری پلے میں میری ساری امت کو رکھا گیا، میرا پلہ بھاری رہا۔ سبحان اللہ، ماشاء مجھے اللہ۔ کہنے دو تین جلا کے جلسے میں آنے والوں، لَوْزِنَتُ الدُّنْيَا كُلُّهَا لَرُجِحَهَا، اگر ایک پلے میں دنیا کے سارے دانشور، مدبر، مفکر، معرخ، مدقق، مدبر، مفسر اور آگے بڑھے اطباء، حکماء، ادباء، فصحاء، بلغاء، فقیہ، مجتہد، محدث، غرض ساری دنیا کے لوگوں کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلے میں آمنہ کا لال ہو، ساری دنیا مل کر آمنہ کے لال کا تکبیر،
सारे नारों में खाता है बोलेगा के बोलिए मेरे आका की शान तो वो शान है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी की बारगाह में अर्ज करती है लना शम्सु वली आफाक शम्स व शम्स खैर शम्स व शम्स खैर मिन व शम्स खैर मिन शम्स समा फइन्न शम्स ततलु बाद फजरी व शम्स ताली बाद इशा। वाह कहाँ गए वो लोग? माशाअल्लाह वो लोग जो कहते हैं कि दुनिया में बीवी किसी की तारीफ नहीं कर सकती। वाह वो लोग जो इस रिश्ते को लेकर अजीब व गरीब बातें करते हैं वो सुनो। हमारी माँ आयशा जो है वो इरशाद फरमाती है, क्या कह रही है? ए दुनिया वालों सुनो, एक मेरा सूरज है, एक आसमान का सूरज है। मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर व अफजल है, क्योंकि आसमान का सूरज फजर के बाद निकलता है और हमारा सूरज ईशा के बाद निकलता है। आला हजरत माशाअल्लाह सुभानअल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सब चमक वाले उजलों में चमका किए। सुभानअल्लाह चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। हमारा नबी सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो आला। हमारा नबी वाह वाह सुभानअल्लाह ये हमारे नबी की शान है। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं शान महबूबियत देखो। फैजान रजा में आने वालों सुनो, अब एक जरा इत्मीनान के साथ सुने आप। एक ईसाई क्रिश्चियन जो है अपने घर में रात में 11:30 बजे तौरा पढ़ रहा। ए जीविश स्कॉलर रीडिंग द बाइबल इन हिज होम। The mention of Prophet Muhammad was a beautiful on this page. The good news has been given about Prophet Muhammad. देखें आप, ये जो मैं बोल रहा हूँ इसका हवाला यहाँ से है, ये निशान है इसमें, क्योंकि बहुत बारीक है इसकी वजह से मैंने इसको अलग से कंप्यूटर से निकलवाया है। ये देखें आप, तो वो जो ईसाई है वो यहूदी पादरी अपने घर में तौरात के सफ़े को पढ़ रहा था। जिस सफ़े को पढ़ रहा था उस सफ़े में हुजूर पाक का जिक्र जमील था। सुभानअल्लाह के बोलो यारो, सुभानअल्लाह हुजूर पाक का जिक्र जमील था, खुशखबरी थी, बशारत दी गई थी और साफ़े मुबारक खोल खोल कर बयान किए गए थे। क्या था वो भी आप लोग सुन लीजिए। ये देखिए उस पेज को जो निकाला है उसमें है प्रॉफिट मोहम्मद प्रूफ इन द बाइबल। कहाँ गए वो लोग जो मूत पी करके बारगाह रिसालत में तनकीद करते हैं? वो सुनिए आप। अल्लाह सेज टू हजरत मूसा, अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा मैं तेरे लिए, तेरे ही मानी, तेरे भाइयों में एक रसूल भेजूंगा। सुभानअल्लाह I will put my words in his mouth, और अपना कलाम उसके मुंह में रखूंगा। वाह And he shall speak unto them all that I shall command you. वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, सुभान वो अल्लाह। वही कहेंगे जो मैं कहूँगा। वाह सुभानअल्लाह अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, वो वही कहेंगे जो मैं कहूँगा। अब आओ तलबा कादरिया और यहाँ पर और भी जो मदारिस हैं उसके तलबा और मैं तमाम उलमा पूरी दुनिया को दावत फिक्र दे रहा हूँ कि आप बाइबल को यहाँ छोड़ें। इस सफ़े को खोल दें जो इस सफ़े में बाइबल में है। किस है? किताब नाम बुक ऑफ इस्तिस्ना, दर्स नंबर 18, बाब नंबर 18। अल्लाह ताला इसमें इरशाद फरमाता है क्या कि मैं एक नबी भेजूंगा तुम्हारे भाइयों में से और उसके मुंह में अपना कलाम रखूंगा। वो अपने तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे, वो वही बोलेंगे जो मैं बोलूंगा। अब आओ कुरान पाक को खोलो, 27वां पारा, सुभान अल्लाह सूरतुन नज्म, सूरह नंबर 53, आयत नंबर 3 और 4। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा यनतिकु अनिल हवा वाह
माशाअल्लाह मेरा हबीब अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, वो वही कहते हैं जो मैं कहता हूँ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब वो यहूदी जो है उस सफ़े को पढ़ रहा था, पढ़ने के बाद जिसमें जिक्र जमील था उस सफ़े को फाड़ देता है, उसको फोड़ करता है, फोड़ करके कच्ची दीवार थी मिट्टी की, उसमें ताप बनाता है और ताप बनाने के बाद उसमें रख देता है और ऊपर से मिट्टी को ढक देता है और हाथ को पोंछ करके सो जाता है। पानी दीजिए पाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी कभी होता है, देखिए आप, वो इस पे रखा और सो गया हाथ झाड़ करके। हुजूर पाक साहब औलाद के बारे में सुन चुका था, मुलाकात की गर्द से निकलता है, हुजूर के बारगाह में जब उसकी हाजिरी होती है तो वो अल्लाह के रसूल से जब वो मिलता है, मुलाकात होती है तो अर्ज करता है कि मैंने सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है, समीतु अन्नका इद्दअत नबूवत, माशाअल्लाह मैंने सुना कि आपने नबूवत का दावा किया है। फअजाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नअम अना रसूलुल्लाह अर्सलनिल्लाहु बिदावतिल तौहीद। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा है तौहीद की दावत के लिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अगर आप नबी हैं तो कोई दलील दे अपनी नबूवत पर, ताकि ये मालूम हो जाए दुनिया को कि आप वाकई में नबी हैं। तो मेरे सरकार मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ रबाई, क्या मैं तुझे तौरात के उस सफ़े को पढ़कर ना सुना दूं जो दीवार में छुपा हुआ है? वाह 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना भाई, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। क्या मैं तुझे वाह वाह बहुत क्या मैं तुझे तौरात के उस सफ़े को पढ़कर न सुना दूं जो दीवार में छुपा करके आ रहा है? इतना सुंदर था, कदमे मुबारक पे गिर जाता है और कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आला हजरत बरेली से पुकार उठे और कोई क्या हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजु शरिया माशाअल्लाह। कौन बना मेहमाने काबा? ताजु शरिया ताजु शरिया। बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये शान महबूबियत। और आगे चले आप, और आगे देखें आप, एक बहुत बड़ा यहूदी आलिम है, नाम है अब्दुल्लाह इब्न सलाम। अब्दुल्लाह इब्न सलाम कान मिन अहद अहबार यहूद अय उलमाए यहूद। अब्दुल्लाह इब्न सलाम कान यअलम कमा यअलम कुल्लु उलमाए यहूद सिफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फलम्मा जाअ नबी मुहाजिरा मिन मक्का इला المدينة فإنه سار إلى النبي قال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا النبي. सुभान अल्लाह और हक बोलिए सुभान अल्लाह। अब्दुल्लाह इब्न सलाम बहुत बड़े यहूदी के आलिम हैं, और आलिम ही नहीं है बल्कि उनकी रगों में नबी का खून है, हजरत यूसुफ की औलाद में से। बहुत बड़े यहूदियों के आलिम रबाई उस दौर के। अल्हम्दुलिल्लाह। फलम्मा जाअ नबी मुहाजिरा मिन मक्का इला मदीना, जब अल्लाह के नबी हिजरत करके मक्के से मदीना पहुंचते हैं, वो लोग जो है यहूदियों के हाथ पैर फूल गए। जितने अंबिया आए हैं वो सब तो बनी इसराइल में आए हैं, ये मक्के से मदीना कौन नबी आ गया? चलो मुनाजरा करते हैं। अब्दुल्लाह इब्न सलाम एक इंसाफ पसंद आलिम थे, वो सरकार को जानते थे तौरात के हवाले से नबी आखिर ज़मा को, और एक रिवायत में कि वो नबी से मुलाकात भी कर चुके थे खुदा के मकाम पर। लेकिन आइए देखें, अब तमाम यहूदी उलमा मुनाजरे की तैयारी कर रहे हैं, किताब लेकर के और खोल रहे हैं। कोई किताब हकूक को देख रहा है,
کوئی مشافہ کوئی مکاشفہ کو دیکھ رہا ہے, کوئی استثناء کو دیکھ رہا ہے, کوئی اخبار کو دیکھ رہا ہے, کوئی گنتی کو دیکھ رہا ہے, کوئی سلاطین کو دیکھ رہا ہے, کوئی کنگ کو دیکھ رہا ہے, کوئی غزل الغزلات کو دیکھ رہا ہے, کوئی بک آف ڈینیل کو دیکھ رہا ہے, کوئی بک آف ڈیٹرونومی کو دیکھ رہا ہے, کوئی بک آف آئزایا کو دیکھ رہا ہے, کوئی بک آف ملاکی کو دیکھ رہا ہے, کوئی ارمیہ کو دیکھ رہا ہے, تیاری کر رہا ہے کہ ان کے پاس جاؤں گا, آپ نبی ہیں تو یہ جواب دیں, یہ جواب دیں, یہ جواب دیں, یہ جواب دیں. لیکن دیکھیں آپ راوی کیا کہتا ہے کہ جیسے یہ لوگ پہنچے ہیں وہاں اور حضرت عبداللہ ابن السلام پہ نظر پڑتی آقا کریم پہ دوری سے, تو دوری سے پکار اٹھا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھنے لگے, ساتھ میں بہت سارے لوگ تھے, وہ تو جانتے تھے نبی کو, یہ لوگ کو نہیں مانتے, یہ بھی جانتے, بڑے یہ لوگ بڑی مطلب عجیب و غریب ہوتے ہیں یہودی. ان لوگوں نے کہا اتا عبداللہ بن سلام لیونادر ولكن لم يطلب الدلیل ولم يسأل شيء لماذا نطق الشہادہ. آئے تھے مناظرہ کرنے, کچھ کیا نہیں, دلیلیں مانگی نہیں, کلمہ پڑھ لیا. کیوں؟ تو عبداللہ بن السلام ایک تاریخی جملہ کہتے ہیں, دل جلا والو کیا ہے, فلما تبینت وجہ عرف انہ لیس بوجہ کذاب. وہ کہتے ہیں خدا کی قسم اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں. بہت چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے اللہ کے آخری نبی ہے. اعلیٰ حضرت برائنی سے پکار اٹھے, وہ کمانے حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں, وہی پھول خار سے دور ہے, وہی شمع ہے کہ یا رسول اللہ یہ تو 1400 سال پہلے کی پرانی بات ہے, لیکن آج کے اس کمپیوٹر کے دور میں آ جاؤ, نیٹ کے دور میں آ جاؤ, موبائل کے دور میں آ جاؤ, تو آج کی دنیا بھی یہی کہنے پہ مجبور ہے. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, جن کے ماننے والے لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. جن کے رگوں میں ایک کا نہیں انیک کا خون, ایک کا نہیں انیک کا خون, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ کچھ بھی بولے, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن جو لوگ اپنے علم میں ماہر ہیں اور ٹھیک ٹھاک انصاف پسند ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دنیا کا بہت بڑا فلاسفر ہے جس کا نام ہے الفونس ڈی لامارچین. یہ کہتا ہے 1790 میں کہ انسانی عظمتوں کو ناپنے کے جتنے پیمانے لا سکتے ہو تو لے آؤ. انسانی عظمتوں کو ناپنے کے جتنے پیمانے لا سکتے ہو تو لے آؤ, اور پھر خود سے پوچھو کیا دنیا میں ان سے بڑا بھی انسانی کامل کوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ محمد سے عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ کیا بتائے گا؟ ظاہری وجہ جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کیا, اسے غور سے سنیں آپ. وہ کہتا ہے پولیٹیکل اینڈ سوشل ایکسپرٹ سیز دیٹ جینیس ہونے کا فیصلہ ان 3 چیزوں پر کیا جاتا ہے. جینیس ہونے کا فیصلہ ان 3 چیزوں پر کیا جاتا ہے. کون بول رہے ہیں؟ لامارٹین 1790 میں. جینیس ہونے کا فیصلہ ان 3 چیزوں پر کیا جاتا ہے. وہ 3 چیز کیا ہے؟ عظیم مقصد, مہان ادیشیہ, اسباب کی کمی, واستوؤں کی کمی, زبردست ریزلٹ, آشچاری جنک پرینام. These are the 3 skills on which a person is tested. یہ 3 ہیں وہ چیزیں جس پر انسان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے تم میں کس میں ہمت ہے کہ محمد سے مقابلہ کرے؟ کس میں ہمت ہے کہ محمد سے مقابلہ کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا, کبھی نہیں کر سکتا.
हरगिज नहीं कर सकता। कहा कैसे? कहा अजीम मकसद, पूरी दुनिया जलालत में डूबी, गुमराही में है, हर तरफ अंधेरा है, उस अंधेरे को उजाले में बदलना है। बेशक, सुभान अल्लाह। अजीम मकसद, अजीम मकसद। असबाब की कमी, असबाब की कमी, टूटी चटाई है, पेट पे पत्थर है, टूटे हुए बर्तन है, हाथ में हथियार की जगह खजूर की छाप है। वसाइल की कमी, वसाइल की कमी, और थोड़ी ही दिनों में, थोड़ी ही दिनों में, थोड़ी ही दिनों में हिंदुस्तान से लेकर के यूरोप तक इस्लाम छा गया। सुभान अल्लाह। डंके बजने लगे, डंके बजने लगे, तो तुम में से किसी में हिम्मत नहीं कि मोहम्मद अरबी का मुकाबला कर सके। और सुनिए आप, एक यही के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं जिनका नाम है रामकृष्ण राव। ये कहते हैं कि मोहम्मद जैसा व्यक्ति न कभी पैदा हुआ है और न होगा। वाह, सुभान अल्लाह, मोहम्मद माशाअल्लाह। के जैसा न कभी पैदा हुआ है न होगा। तो हम किसकी बात माने? इसकी, न कि उनकी जिनके रगों में एक का नहीं अनेक का खून है। किसको माने हम? आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोग रिसर्च कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया में जिसका सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है उनका नाम मोहम्मद है। जिनका सबसे ज्यादा अदब किया जाता है उनका नाम मोहम्मद है। जिनका सबसे ज्यादा एहतराम किया जाता है उनका नाम मोहम्मद है। जिनके नाम पे सबसे ज्यादा नाम रखे जाते हैं उनका नाम मोहम्मद है। जिनका नाम लेकर लोग रोते हैं उनका नाम मोहम्मद है। जिनका नाम लेकर सोते हैं उनका नाम मोहम्मद है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद हम किधर, हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरपा ढूंढा, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलिए बोलिए, लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी की क्या शान है। अपने तो अपने हैं, आज पूरी दुनिया में ये मेरे पास वो चीज़ भी है, बगैर ट्विटर, बगैर मोबाइल, बगैर फेसबुक, व्हाट्सएप के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स किसी के हैं तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स मोहम्मद अरबी की हैं। ये शान महबूबियत देखो। अब आइए मैं आपको एक चीज़ सुनाने वाला हूँ, उससे पहले झूम के कह दीजिए यार। कर उठेंगे। दुनिया का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, प्रोफेसर है, रिसर्चर है, रिफॉर्मर है, फिलोसफर है, हिस्टोरियन है, मैथमेटिशियन है। इसका नाम है थॉमस कार्लाइल। क्या नाम है? थॉमस कार्लाइल। ये कौन है? ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। किस यूनिवर्सिटी के? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन के प्रोफेसर हैं। ये एक मशहूर जमाना किताब जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम है। किताब का नाम है ऑन हीरोज, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइन इन हिस्ट्री। एक किताब लिखने के लिए बैठते हैं जो 11 तकरीरों का मजमुआ है उनकी। इस किताब को लंदन में लिखने के लिए बैठते हैं। आपको मालूम है 1,24,000 अंबिया किराम में सिर्फ एक नबी को लेना था इंतखाब, चुनाव। आप सुनकर खुशी से मचल उठेंगे कि 1,24,000 अंबिया किराम में जिनके नाम का इंतखाब करता है वो कोई और नहीं, हमारे आपके आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 24,000 अंबिया किराम में जिनके नाम का इंतखाब करता है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हैरत की बात है
जिस यूनिवर्सिटी में बोल रहा है यूनिवर्सिटी ईसाइयों की है, जो शहर में है वो शहर ईसाइयों का है, जो सामने बैठे हैं वो भी ईसाई हैं, जो दाएं बैठे हैं वो भी ईसाई हैं, जो बाएं बैठे हैं वो भी ईसाई हैं। ऐसे माहौल में, ऐसी जगह 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम में एक का नाम चुनना था तो किसी और को नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे इंतखाब करता है। आप क्या समझते हैं, क्या वो हजरत मूसा को नहीं जानता था, हजरत ईसा को नहीं जानता था, हजरत दानियाल को नहीं जानता था, हजरत जकरिया को नहीं जानता था, हजरत दाऊद को नहीं जानता था, हजरत यूनुस को नहीं जानता था? नहीं, वो सबों को जानता था, पहचानता था। मगर फिर भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में जब नबूवत का नमूना पेश करने की बारी आई तो 1,24,000 अंबिया किराम में when it comes to presenting the example of prophethood to the world, he said Prophet Muhammad our role model, he is prophet of the world। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद अरबी हमारे रोल मॉडल हैं। मैं उनको दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉफिट, सबसे बड़ा नबी मानता हूं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बेशक सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा नबी मानता हूं। दुनिया का नॉट हजरत इब्राहिम, नॉट हजरत इस्माइल, नॉट हजरत मूसा, नॉट हजरत ईसा, नॉट हजरत जकरिया, नॉट हजरत यूसुफ। हु इज प्रॉफिट ऑफ द वर्ल्ड? ही सेड प्रॉफिट मुहम्मद आवर प्रॉफिट ऑफ द वर्ल्ड। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और आगे क्या कहते हैं सुनिए, मोहम्मद इज अ हीरो प्रॉफिट, मोहम्मद इज अ हीरो प्रॉफिट। और कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद द ग्रेटेस्ट टीचर in the world, Prophet Muhammad, beautiful contact with wife, life about Prophet Muhammad must stop। जो झूठ बोलते हैं वो चुप हो जाए। वाह जो झूठ बोलते हैं वो चुप हो जाए, जो उनको नबी नहीं मानते वो चुप हो जाए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जो मोहम्मद को माज़अल्लाह सच्चा नहीं मानते वो सुन लो कि मोहम्मद से ज्यादा सच्चा इंसान कोई पैदा ही नहीं। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कोई पैदा ही नहीं हुआ है। सुभान अल्लाह। इतना कहना था कि जितने भी वहां पर 1300 लोग बैठे थे सब खड़े हो करके जो है इनको शाबाशी दे रहे थे। सुभान अल्लाह। लहक के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फिर उन लोगों ने कहा सर, और ये बात कहाँ पे है सुन ले आप। हीरो प्रॉफिट में सफा नंबर 51 में, सफा नंबर 51 को आप ढूंढेंगे इंशाअल्लाह, वो चैप्टर आप जो मैं बयान कर रहा हूँ वहां पर आप देख लेंगे। अब आइए मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहता है कि सुनो, सब लोगों ने कहा आप मोहम्मद अरबी की तारीफ कर रहे हैं, क्या बात है, इनकी करें, सिर्फ हजरत मोहम्मद की तारीफ कर रहे हैं। कहा सुनो, हजरत मोहम्मद जो दीन लेके आए वो दीन लाजवाब, जो पैगाम लेके आए वो पैगाम लाजवाब, जो किताब लेके आए वो किताब लाजवाब, सूरत लाजवाब, सीरत लाजवाब, अखलाक लाजवाब, उसी तरह उनका लाया हुआ इनकलाब भी लाजवाब। दुनिया में कोई ऐसा इनकलाब नहीं जो मोहम्मद अरबी के इनकलाब से मुकाबला कर सके। बोलिए दुनिया के सारे इनकलाबात एक तरफ, मोहम्मद अरबी का इनकलाब एक तरफ, कोई मुकाबला नहीं। लोगों ने पूछा कि बताइए आप क्या खुसूसियत है उस इनकलाब में। कहा सुनो, जब दुनिया में इनकलाब आता है तो उसकी 3 नस्ल के बाद उसका फल खाया जाता है, सिवाय मोहम्मद अरबी के, सिवाय मोहम्मद अरबी के 11 साल के अंदर यूरोप से लेकर अरब तक इस्लाम के डंके बजने लगे। इस्लाम के डंके बजने लगे। और वो कहता है सुनो, इनकलाब रशिया में भी आया था, फ्रांस में भी, अमेरिका में भी, यूरोप में भी, लेकिन उस सारे इनकलाबात में सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बदला था, बाकी कुछ नहीं, सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले था। लेकिन मोहम्मद अरबी के इनकलाब में हर चीज बदल गई, अकायद बदल गए, रुसूमात बदल गए, नजरियात बदल गए, ख्यालात बदल गए, जिक्र अस्कार बदल गए, गुफ्तार बदल गए, रफ्तार बदल गए, अखलाक बदल गए, सियासत बदल गई, मईशत बदल गई, कोई
शय अपनी असली हालत पर कायम न रही। लोगों ने कहा सर मोहम्मद अरबी के इनकलाब ने क्या क्या बदला, क्या क्या बदली, आप मुझे ये बता दें। सम वन एग्जाम्पल अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद रिवोल्यूशन, एक दो एग्जाम्पल आप मुझे सुनाएं। कहा सुनना चाहते हो? कहा जी। कहा देखो मोहम्मद अरबी के इनकलाब में कैसे सब कुछ बदला है, सुनो आप कहते हैं when it come to Prophet Muhammad come to this society, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सोसाइटी में तशरीफ लाए वो जहालत में, गुमराही में, वो सोसाइटी इतने, वो माशरा इतना डूबा हुआ था कि वो लोग इस बात पर झगड़ा करते थे कि पहले मेरा ऊंट पानी पिएगा, वो कहता है नहीं बे पहले मेरा ऊंट पानी पिएगा। बड़ी जो है गैरत वाली कौम, नाक पे जान देने वाली कौम, ले कोई कहता मेरा जानवर यहाँ बैठेगा, वो कहता नहीं पहले मेरा जानवर यहाँ बैठेगा। एक कहता पहले मेरा जानवर यहाँ से गुजरेगा, दूसरा कहता नहीं पहले मेरा जानवर गुजरेगा। कहीं पानी पिलाने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा बढ़ाने पे झगड़ा, कहीं जानवर बैठाने पे झगड़ा। और जब वो इस पे झगड़ते थे दोस्तों तो 1 साल 2 साल 3 साल नहीं 90 साल तक लड़ते झगड़ते रहते थे। लोगों ने पूछा सर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ क्या? अल्लाह के रसूल उनके दरमियान तशरीफ लाए और इरशाद फरमाते हैं अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमु वला यख़ज़ुल वला यहक़िरु। मुसलमान मुसलमान का भाई है, न उस पर जुल्म करता है, न उस पर जुल्म सौंपता है, न उसको रुसवा करता है और न ही उसको हिकारत से देखता है। बस एक लाइन। फिर क्या हुआ? क्या होना क्या था? वो लोग जो ऊँटों को पानी पिलाने के चक्कर में 90 साल तक लड़ते थे, चश्मे फलक ने हैरत से देखा एक जंग का मकाम था। लोग जो हैं सिपाही जख्मों से चूर चूर थे, जागने का वक्त था, पानी मांगते हैं, पानी पानी पानी। साथी आता है उठा के बैठाता है, प्याला मुंह से लगाता है। टेक्निकल ऑफ तकरीर, लोगों को उठाने का, जो सो गया उनको उठा दो। एक जंग का मौका है, हर तरफ जख्मी, हर तरफ सिपाही, उधर सिपाही, इधर सिपाही, उधर जख्मी, वो चिल्ला रहे पानी पानी पानी। जागने का वक्त, आखिरी सांसें चल रही है। साथी आता है, उठा के बैठाता है, प्याला मुंह से लगाता है, अभी पिया नहीं है कि दूसरे जख्मी भाई की आवाज आती पानी 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 पानी। तो ये कहता है दानी अस्की यखी अव्वला, मुझे छोड़ दो पहले मेरे उस भाई को पानी पिलाओ। मोहम्मद अरबी का इनकलाब देखो, ये लोग ऊंट को पानी पिलाने के चक्कर में लड़ते थे, यहाँ खुद की बारी है, वो भी किस वक्त? जागने के वक्त। बड़ी शिद्दत के प्यास रहते, आका करीम फरमाते हैं दानी अस्की यखी अव्वला, मुझे छोड़ो पहले मेरे उस भाई को पिलाओ। कोई भाई नहीं है, सिर्फ अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम, इनकलाब रसूल अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम। साथी जो है उसको छोड़ देता है, दूसरे के पास जाता है, उठा के बैठाता है और प्याला मुंह से लगाता है, अभी पिया नहीं है कि तीसरे की आवाज आती है माँ माँ माँ, पानी पानी पानी। उसको छोड़ देता है, वो कहता है दानी अस्की रखे वाला, मुझे छोड़ो पहले मेरे उस भाई को पानी पिला। फिर उसके पास जाता है, उसे उठाता है, प्याला मुंह से लगाता है, पिया नहीं है, फिर आवाज आ रही है पानी पानी पानी। फिर उसके पास जाता है, प्याला मुंह से लगाता है, फिर उसकी आवाज आने लगती है पानी पानी पानी। हैरत की बात है कि इस वक्त जागने के वक्त आका फरमाते उस वक्त प्यास की इतनी शिद्दत होती है, इतनी शिद्दत होती है कि अगर सारे समंदरों का पानी पिला दिया जाए प्यास नहीं बुझती। मगर एक दुनिया वालों, ऐसे मकाम पर ये जानिसारी क्यों, ये सैक्रिफाइस क्यों, कुर्बानी क्यों क्यों क्यों? ये तो वो कौम थी जो अपने ऊंटों को पानी पिलाने के चक्कर में 90 साल तक लड़ती थी। आखिर उसके अंदर आज क्या कर दिया गया है जो अपनी प्यास को, अपनी जान को, अपने मुसलमान भाई के जान पे कुर्बान कर रहा है? ये मोहम्मद अरबी का इनकलाब है जिसने एक बद्दू कौम को, अनपढ़ कौम को कायनात में सिंबल बना दिया, कायनात में सिंबल बना दिया है। जो खुद न थे राह पे, औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीह
اتنا سننا تھا جتنے لوگ تھے وہ بھی رو رہے تھے، جو اللہ کے رسول کو جانتے نہیں ہیں وہ بھی رو رہے تھے، اور ان لوگوں نے کہا سر I want to hear one more، میں سننا چاہتا ہوں، ایک اور بیان کر اللہ کے بولے یارو I want to hear one more، ایک اور سنایا۔ اس نے کہا اور سننا چاہتے ہو سنو آپ۔ Before the birth of Prophet Muhammad in Arab, especially in Medina, alcohol among the very especially among the Arab and Yasrab، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل اور ان کے بعد عرب میں اور خاص کر یثرب میں شراب کا جو ہے بہت زیادہ رواج تھا، لوگ وہاں شراب پیتے تھے اور ان کی زندگی کا وہ حصہ بن چکی تھی۔ لوگوں نے پوچھا واٹ ہیپنڈ، پھر کیا ہوا، تو ہونا کیا تھا؟ اللہ کے رسول ان کے درمیان تشریف لے گئے اور ایک آیت پڑھ کے سناتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت خانے اور قسمت ناپنے والی جو تیر ہے، یہ سب شیطان ناپاتی کام ہے، تو اس سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف شراب کا حسن تھا، دوسری طرف اس کے آقا کا حکم تھا، پھر کیا ہوا؟ بڑا کڑا امتحان تھا۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانیت جیت گئی، شیطانیت سر پیٹ کر رہ گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ جیسے آقا کریم آیت کو پڑھتے ہیں، پورے بستی کی گلیوں میں جا بجا شراب بہ رہی تھی، برتن توڑے جا رہے تھے، مٹکے توڑے جا رہے تھے، گھڑے توڑے جا رہے تھے۔ کیوں؟ یہ محمد عربی کا انقلاب ہے۔ اعلان کیا سوسائٹی میں انقلاب آ گیا، اعلان کیا دنیا میں انقلاب آ گیا، اعلان کیا سماج میں بدلاؤ آ گیا۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے آقا ہو، ادھر گردن جھکا ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ ان کے سمجھانے کے لیے نہ لمبے چوڑے جلسے کرنے پڑے، نہ کوئی سیمینار منعقد ہوئے، صرف ایک لائن، بے شک شراب پینا شیطانی کام ہے۔ انڈیا سے لے کر عرب تک، عرب سے لے کے امریکہ تک ریسرچ ہے، ابھی بھی اس دنیا میں اگر کوئی قوم ہے جو شراب کو چھوتی بھی نہیں، ایک قطرہ نہیں، ایک بوند نہیں، تو وہ مسلمان ہی ہے۔ آواز ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں، آپ چلے جائیں آپ تو آپ کو اسکولوں میں، کالجوں میں، پارکوں میں، ریٹن بسز، کالجز، ہاسپیٹل اینڈ ہوٹل، پارک، ہر جگہ آپ دیکھیں گے ایک جملہ نعرے رہتے ہیں، شراب انسانیت کی دشمن ہے، شراب انسانیت کی دشمن ہے، شراب زہر سے زیادہ خطرناک ہے، شراب تمام جرائم کی بنیاد ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس طرح کے جملے میں بسوں پہ پڑھتا ہوں، ٹرینوں پہ، تو میں فرد و مسرت سے جھوم جاتا ہوں۔ جب کالجوں میں، یونیورسٹی میں، ہوٹل میں پڑھتا ہوں، یہاں شراب پینا منع ہے، یہاں شراب پینا منع ہے۔ یہ فرمان رسول ہے جو غیروں کے سروں پہ چڑھ کے بول رہا ہے۔ مگر یہ کتنی بڑی بے ایمانی کی بات ہے، تم پیغمبر کی حدیث لکھ رہے ہو اور ان کا نام لینے میں شرما رہے ہو۔ ارے نادانو، یہ تو بڑی اچھی بات نہیں ہے۔ میں دنیا کے بڑے بڑے اسٹیشنوں پہ گیا، اسٹیشنوں پہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے کوٹیشن ہوتے ہیں، تو جن کے بھی کوٹیشن لکھے جاتے ہیں ساتھ میں بریکٹ میں ان کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والوں کو معلوم ہو جائے۔ کہیں میں نے دیکھا ہے لکھا ہوا ہے لگن کی کمی سے علم کھو جاتا ہے، بریکٹ میں گرو نانک، کہیں لکھا ہے بے وقوف کسی کے نصیحت نہیں سنتا، بریکٹ میں تلسی داس، کہیں لکھا ہوا ہے ساری جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، بریکٹ میں ڈاکٹر اقبال، کہیں لکھا ہوا ہے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، بریکٹ میں رضا اکیڈمی، کہیں لکھا ہے اب تم سنی ہو اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتے، بریکٹ میں رضا اکیڈمی، کہیں لکھا ہے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، بریکٹ میں دلکش راجوی الحاصل، جس نے جو باتیں کہی، جب ان کے جملے، بینر، نعرے جب دیواروں پہ لکھے جاتے ہیں تو ساتھ میں ان کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والوں کو معلوم ہو جائے۔ میں کہتا ہوں تم میرے پیغمبر کی حدیث لکھ رہے ہو، میرے نبی کا نام لینے میں شرما رہے ہو۔ ارے نادانو، اگر پیغمبر کے قول کے ساتھ میرے نبی کا نام بھی دیواروں پہ، بسوں پہ، اسٹیشنوں پہ لکھ دیا کرو تو خدا کی قسم نہ جانے کتنی ٹرینیں ہیں، بسیں ہیں جو
जबलपुर से आ रहा था तो सोच रहा था, उसे अल्लाह का नाम लेके चढ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे यकीन था कि मैं हजरत की ज़ियारत करूंगा, तो जब तलबा बुलाया है और मदीने वाले आए हैं तो आए हैं, हाँ माशाअल्लाह कुछ नहीं है, लेकिन इंसान हूँ, डर रहा था। खुदा की कसम, देखिए दवा आपको कौन दे रहा है? मदरसे पर अड़ंगा लगाने वालों, तुमको एक्सीडेंट से अगर कोई बचा रहा है तो मदरसे का तालिबे इल्म बचा रहा है। जिसके नबी को तुम गालियां देते हो, जिनकी किताब पे तनकीद करते हो, तुम्हें आज वो फॉर्मूला दे रहा है जो तुम अरबों खर्च करके नहीं कर रहे। फैजाने रजा से रूहुल अमीन तुम्हें फ्री में दे रहा है, रजा का सदका। बसों पे, ये लंदन में देखें आप, ये बसों पे अल्लाह के रसूल का नाम लिखा हुआ है। Prophet Muhammad, the light of the light, teacher of the truth, a blessing to the believer. ईमान, ईमानो, ईमान जाने ईमान है, जाने ईमान रसूल कायनात है, जिंदगी में रोशनी मोहम्मद अरबी सी। क्या करोगे? तुम शराब की मजम्मत के लिए अपनी किताबों को खोलते हो तो सारा वर्क सादा नजर आएगा, कहीं मजम्मत मिलती ही नहीं है। अगर कहीं मजम्मत मिलेगी तो कुरान पाक में, हदीस पाक में। आज पूरी दुनिया जो है रसूल के कौल को मानने पे मजबूर हो रही है, तो जो चल रही है रोज़े महशर, शाफ़े महशर की बात कोई भी टलते न देखी, साथ ये कौसर की बात। और लह के बोलिए, ये हमारे बहुत सारे भाई जो हैं अभी ज़ियारत हरमैन से आ रहे, बहुत सारे जाने वाले कौन हैं? आप सुनिए, आप ये 2005 की बात है, डेनमार्क में जब कार्टून का मसला चल रहा था, उस वक्त पूरी दुनिया में एक बड़ा मसला बना हुआ था। जर्मनी भी हिटलर का शहर रहा है, बहुत अच्छे किस्म के बदमाश वहाँ भी रहते हैं। लेकिन देखें आप, नबी के मानने वाले तो हर जगह हैं, अगर वो ना हो तो दुनिया ना रहे। अगर हम नहीं रहेंगे, जब अल्लाह रसूल का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा तो बेटा क़यामत आ जाएगा। इसलिए हमको रहने दो और अच्छे से खाने पीने दो। जब हम हैं तभी तुम हो, जब हम नहीं रहेंगे तुम हो नहीं रहो। तो एक झगड़ा वहाँ भी बड़ा भयानक हुआ। किसमें हुआ? मिलिट्री की 3 किस्में हैं, एक है जल सेना और थल, एक है वायु। तो शबाश भाई, मैं ये थल वाली बात कर रहा हूँ। जर्मन बहरिया का सरबराह एक मुसलमान ऑफिसर था जिसका नाम था अब्दुल अजीज। The head chief of the German Navy told a Muslim officer that there was more powerful, Ma'azallah, than the Prophet, because I heard 25,000 soldiers who stand up at my slogan. वो नालायक किसी बात पर वहाँ पे झगड़ा हुआ, तो वहाँ पर बात चल रही थी डेनमार्क का। वो भड़क उठा, 3 मुस्लिम थे, बाकी सब यहूदी थे। तो उसने माज़अल्लाह अलियाज़ बिल्लाह 100 बार अस्तग़फिरुल्लाह कहा, कह रहे हैं जो है मैं तुम्हारे नबी से ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो इतना वो इसलिए कहा, जो भी लोग करते हैं सोचते हैं कि जरा देखते हैं इनके अंदर क्या है। वो सोचा हम बोलेंगे तो ये गर्म होगा और हम इसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन अब्दुल अजीज जो है वो बिल्कुल 1 नंबर जो है वो गुलामी रसूल बोलो मसलक के आला हजरत का पैरोकार था, सुभान अल्लाह, पैरवी करता था। वो सोचा ना कि इसको हम बोलेंगे तो बहुत गर्म होगा, फिर हम लोग सब मिलके इसका मजाक उड़ाएंगे। वो बड़े सुनिए गौर से, बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ आगे बढ़ा। अल्लामा अब्दुल साहब 250 लोग बैठे अल्लाह में, वहाँ पर गया और उसने पूछा
कि तुम्हारे पास 25,000 आर्मीज हैं जिस पे तुमको बेटा बहुत फख्र और नाज है, ये बताओ अगर वो 25,000 जो जा रहे हैं हरमैन शरीफ में और ज़ियारत वहाँ भी और काबतुल्लाह जाएंगे, खासकर वो बहुत महजूज होंगे और हमारे भाई भी, कहा कि तुम्हारे पास 25,000 की मिलिट्री है, अगर उस 25,000 मिलिट्री को एक पैरेलल सर्कल में खड़ा करना, पहुंच गए? कहा 25,000 लोगों को एक पैरेलल सर्कल में इस तरह गोल गोल खड़ा करना हो तो कितना टाइम लोगे? उसने कहा अगर वो मेरी तरबियत याफ्ता है तो आई हो 25 मिनट, 25 मिनट में 25,000 लोगों को खड़ा कर दूंगा। तो उसने कहा लिसन टू मी, कीप योर माइंड, अगर 25 लाख लोग हों तो कितने टाइम लगेंगे तुमको एक पैरेलल सर्कल में खड़ा करने में? अगर 25 जवान है, अगर 25 लाख लोग हुजूर 25 लाख लोग हों तो 2500 यहूदी ऑफिसर बैठे हुए हैं, यहाँ का आरएसएस और उसका भी बाप है बोला, ये उन्हीं के जो है सब नस्लें हैं यहाँ पर है, वहाँ बैठे हुए हैं सब। बोला अगर आप लोग के पास 25 लाख हो तो उसको एक पैरेलल सर्कल में खड़ा करने में कितना टाइम लेंगे? उसने कहा अरे तुम क्या बोल रहा है, 25 लाख लोग कहाँ मिलेगा और इतना बड़ा जगह कहाँ मिलेगा? मिलेगा कहाँ, वो मैं मिलेगी बोल रहा हूँ, इतनी बड़ी जगह कहाँ मिलेगी, ये ग्राउंड कहाँ से लाओगे? उसने कहा इसकी फिक्र आप न करें, 25 लाख आदमी भी मैं दूंगा, एक बड़ा ग्राउंड। तो बताओ हमें कितना टाइम लगेगा एक पैरेलल सर्कल में खड़ा करने में 25 लाख लोगों को? तो उसने कहा उसके लिए मुझे जो है उनको ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, मुझे 1 हफ्ता चाहिए। कहा बहुत अच्छा। फिर वो कहता मुस्लिम ऑफिसर सेज लिसन टू मी, कीप योर मैन, 25 lakh people, one not belong to one country, some of belong to different countries. अरे मचल जाओ यारो, मचल जाओ। ये तकरीर अगर यहाँ चल गई, इस करने से पहले मैंने हजरत से बात की थी, फिर इंशाल्लाह इसको आगे भी देखेंगे। अल्लाह के बोलिए। अगर 25 लाख चूंकि इतने बड़े उलमा और 16 उस्तादुल उलमा के सामने चले तो फिर चले चले, फिर कौन रोकेगा? जिसके साथ रहमत तो वहां जाए। लाख बोलिए। कीप योर माइंड, 25 lakh people will not belong to one country, some of belong to different country. ये 25 लाख लोग एक कंट्री के नहीं होंगे, एक मुल्क के नहीं होंगे, वो अलग अलग कंट्री के होंगे। कोई इंडिया का होगा, कोई पाकिस्तान का होगा, कोई अफगानिस्तान का होगा, कोई बांग्लादेश का होगा, कोई श्रीलंका का होगा, कोई इंडोनेशिया का होगा, कोई ब्रुनेई का होगा, कोई मलेशिया का होगा, कोई न्यूजीलैंड का होगा, कोई अदरलैंड का होगा, कोई हॉलैंड का होगा, कोई पोलैंड का होगा, कोई ईरान का होगा, कोई इराक का होगा, कोई नेपाल का होगा, कोई बर्मेनिया का होगा, कोई जोलो का होगा, कोई सिंगापुर का होगा, कोई बैंकॉक का होगा, कोई हांगकांग का होगा, कोई अर्जेंटीना का होगा, कोई अर्जेंटीना का होगा, कोई ऑस्ट्रेलिया का होगा, कोई वेस्ट इंडीज का होगा, कोई बेल्जियम का होगा, कोई बेल्जियम का होगा, कोई अमेरिका का होगा, कोई अफ्रीका का होगा, कोई तुर्की का होगा, कोई कतार का, सब ऑफ ऑल कंट्रीज। सो इफ यू वांट टू सो आप बोलिए कि so much how can will it take you one parallel circle to about 25 lakh Muslims? ये लोग अलग अलग कंट्री के होंगे, अलग अलग मुल्कों के होंगे, तो एक पैरेलल सर्कल में खड़े करने में आप कितना टाइम लोगे? तो वो सोचने लगा और कहा इट इज वेरी टफ फॉर मी, इट इज वेरी टफ फॉर मी, इट इज वेरी टफ फॉर मी, ये तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। I cannot make with 1 week, I need 3 weeks. मुझे 3 हफ्ता चाहिए, क्योंकि उसे हम जो है उनको ट्रेन करना पड़ेगा। तब उसने कहा the Muslim officer says listen to me, keep your man, 25 lakh people, there is no same language, some of different language. ये 25 लाख लोग की ज़बान
जबानें एक नहीं होंगी, हैं? कोई उर्दू बोलेगा, कोई अरबी बोलेगा, कोई फारसी बोलेगा, कोई हिंदी बोलेगा, कोई सिंधी बोलेगा, कोई जापानी बोलेगा, कोई जोरो बोलेगा, कोई बंगाली बोलेगा, कोई फारसी बोलेगा, कोई फारसी बोलेगा, कोई तमिल बोलेगा, कोई कन्नड़ बोलेगा, कोई मराठी बोलेगा, कोई उड़िया बोलेगा, कोई अमेरिकन बोलेगा, कोई तताली बोलेगा, कोई जर्मन बोलेगा. So much how time will it take you? One parallel circle, 25 lakh Muslims tell me. तो वो सोचने लगा, कहा I can, it is really tough for me, I cannot make within 3 weeks, I need 4 weeks. ये तो 3 हफ्ते में नहीं होगा, मुझे 4 हफ्ता चाहिए. उसने कहा अच्छा, keep your mind, listen to me, 25 lakh people, there is no same gender, some are different gender. कहा क्या उसमें कोई लड़का होगा, कोई लड़की होगी, कोई मर्द होगा, कोई औरत होगी, कोई ज़ईफ होगा, कोई ज़ईफा होगी, कोई लूला होगा, कोई लंगड़ा होगा, कोई बहरा होगा, कोई गूंगा होगा, कोई गूंगा होगा, कोई अंधा होगा, कोई हाथ से माजूर, कोई पार से माजूर, कोई पाँव से माजूर. तो क्या करोगे, तो क्या करोगे, कितना टाइम लोगे, इतना सुनना था. वो कहता है I cannot do this until the death. बोलो मेरे दोस्तों, I cannot do this until the death. ये तो मैं मरते दम तक नहीं कर सकता. ये तो मैं मरते दम तक नहीं कर सकता. कहा क्यों नहीं कर सकते, कहा इसलिए नहीं कर सकता, कहा अभी तो बहुत दूर रहे थे, अब वो मैं कर नहीं सकता. कहा ये लोग मुख्तलिफ मुल्कों के होंगे, मुख्तलिफ कंट्री के होंगे, मुल्क अलग, कंट्री अलग, देश अलग, जबान अलग, सोच अलग, फिक्र अलग, अंदाज अलग, तालीम अलग, एजुकेशन अलग, नॉलेज अलग. अगर मैं किसी को बोलूँगा बैठ जाओ तो उड़ जाएगा, किसी को बोलेंगे अभी उठना तो बैठ जाएगा, किसी को बोलेंगे अभी उधर देख, बोलेगा इधर देखेंगे, किसी को बोलेंगे दाएं देख रहे तो बेटा बाएं देखेगा, किसी को इधर आना तो उधर जाएगा, किसी को उधर जाने तो इधर आएगा. So I cannot do this until the day. ये तो मैं मरते दम तक नहीं कर सकता, मरते दम तक नहीं कर सकता. 2500 यहूदी बैठ वक्त बोल रहे थे कि हम लोग ये काम एक वक्त मतलब मरते दम तक नहीं कर सकते हैं. फिर वो अब्दुल अजीज, इस्लाम का शेर ही कहा जाएगा, जो बातिल के आगे इस्लाम की बात कर रहा था. उसने कहा सर I can make 21 parallel circle, 25 lakh Muslims within only 10 minutes. बोलो बोलो बोलो. I can make one parallel circle, 25 lakh Muslims within only 10 minutes. मैं 10 मिनट में. तो यहूदी बोला oh that is possible only 10 minutes. Yes it is possible inshallah. इंशाल्लाह. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सबको ले गया एडिटोरियम में. एडिटोरियम कहते हैं हॉल को, और उसके पास एक कैसेट बहुत पुरानी 2 साल पहले, उस दिन जब काबे के दौरान जब सारे हाजी काबे के इर्द गिर्द रहते हैं, एक दिन ऐसा आता है उस दिन शरीफ तवाफ़ ज़ियारती का काम रहता है, तो सारे हाजी काबे शरीफ के इर्द गिर्द ही रहते हैं. तो जब एडिटोरियम में गया, वो कैसेट दिखाया बहुत बड़े पर्दे पर. तो जब उन लोगों ने देखा 25 लाख लोगों को एक ही कपड़े में मलबूस सफेद और जबान भी एक, लब्बैक अल्लाहुम्मा ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वल निअमत लक वल मुल्क. ये सब देख कर एक ही अंदाज, एक ही रंग, एक ही कलर, एक ही स्टाइल देख करके वो लोग पसीने पसीने. ये क्या हो रहा. और ठीक उसी वक्त मगरिब की अजान शुरू.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ مغرب کی اذان شروع ہوتی ہے اور اذان ہو رہی ہے اور کعبے میں جتنے دروازے ہیں ہر دروازے سے حاجی اندر آ رہے ہیں اور ایک پیرالل سرکل بنا رہے ہیں جس طرح ملٹری فوج اندر آتی اس طرح حجاج کرام اندر آئے اور گول گول سرکل بنا کر کھڑے ہونے لگے اذان ختم سرکل فنش تیار اب وہ لوگ دیکھ رہا ہے ایسا دلکش منظر کبھی دیکھا ہی نہیں جو جہاں ہے وہیں سے رو رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا 10 منٹ کے اندر سرکل پیرالل سرکل میں تمام جو ہے حجاج کرام آ گئے گول گول دائرہ فنش اور اس کے بعد اقامت شروع ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد میں سب تیار ہیں اتنے ہی میں کعبے کا نجدی امام سڑا ہوا امام بدبودار امام آتا ہے اور آتے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے استووا اقیموا علی صفوفکم واعتدلوا اتموا الصف الاول فالاول اس کا تلفظ اتنا اچھا نہیں ہے جو رضا کے غلام ہے وہ لوگ اتنا اچھا کر لیتے ہیں وہ کیا کریں مجھے نا اور اس کے بعد میں 25 لاکھ ہیں کچھ لوگ ہیں جو الگ سے بھی ہیں مگر وہ دکھتے نہیں ہیں جو الگ اپنا پڑھتے ہیں لیکن جو دکھ رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد وہ کرتا ہے دیکھیے وہ حاجی دیکھ اور تمام یہودی دیکھ رہا ہے پھر امام کہتا ہے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم اللہ اکبر. وہ رکوع میں 25 لاکھ لوگ رکوع میں. اللہ اکبر. قوم سب لوگ قومے میں. اللہ اکبر. سجدے میں سب لوگ سجدے میں. اللہ اکبر. جلسے میں سب لوگ جلسے میں. اللہ اکبر. پھر سجدے میں. اللہ اکبر. پھر قیام. پھر سورۃ الفاتحہ. پھر کوئی سورہ. اس کے بعد پھر رکوع. پھر قیام. پھر سجدہ. پھر آخر میں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب وہ دیکھ رہا 25,000 لوگ دیکھ رہے. وہ رونے لگے. رو رہے ہیں. ایک ہی انداز, ایک ہی فکر, ایک ہی لباس, ایک ہی کلر. وہ دیکھ کے رونے لگے. عبدالعزیز نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا سنو میں اپنے آپ کو جو ہے ترم خان سمجھ رہا تھا, لیکن سنو میری 50 سالہ زندگی کی تحقیق کعبے کی ایک تکبیر کے آگے دم توڑ. میں تو مسلمانوں کو ایسے ہی سمجھ رہا تھا. ارے یہ تو بڑی تربیت یافتہ قوم ہے. وہ تو سیدھی کرنا جانتی ہے. ان قریب یہ اپنی صفیں سیدھی کرے گی صرف ایک نعرہ حق کی بات. اور اس نے مان لیا کہ یہ سب نبی کی تعلیم ہے. محمد سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں. حضرت بریلی سے پکار اٹھے لم یاتی نذیر کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سوئے تجھ کو اے شہر دوسرا. امام محمد رضا خان وہ ہے اعلیٰ حضرت جو ہے